Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening. I'm Khatija Zishan, your host for today's session. On behalf of the AMP team, I welcome you all to the Career Guidance Seminar. Before we start the talk, let's have a quick introduction of AMP. AMP is a non-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our country in the field of education, employment, and empowerment, and it has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the society and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressing, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Some of the prominent achievements of AMP under the School Development Program, 2,800 plus skill development lectures were delivered, connected with more than 800 schools, 281,000 students were benefited, and 110 plus teachers training and parenting workshops were also conducted. Employment Assistance Cell organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. 220 plus employability trainings were conducted and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment, more than 800 higher education scholarships were sponsored, 860 plus towards orphans education. 425 plus families were benefited under this program. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 plus students have been counseled. 50 plus career guidance documents and 1,500 plus career chart distributions can be found. Awards and partnerships, 380 plus renowned educationalists connected and awarded, 50 plus partnerships including state government and 100 plus partner NGOs. AMP has also launched some new digital initiatives last year, which includes indiazakat.com, indiamentors.com, and empowerjobs.com. IndiaZakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform where Zakat seekers and Zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. IndiaMentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. EmpowerJobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training and employability training programs. AMP's reach, it has an on-ground presence of more than 140 plus active chapters in 26 states, 16 countries with 6,000 plus active members. Next slide, please. Online presence, it has about 1,25,000 plus members and professionals connected on various social media platforms. To join AMP, visit www.amp.org/joinamp. We also have a YouTube channel where you can find career guidance seminar videos will be uploaded there. You can find it, and also the upcoming videos. If you have any questions, please post it in the Q&A section. We will address it at the end of this session. Now, I would like to introduce our speaker for today, Mr. Aftab Fazil, an advocate and a social worker. He has an MSW from IGNOU University, LLB from CCSU. He is working as an advocate in Delhi courts and doing social work for over 10 years. He is also a founder of Sir Syed Computer Institute, president of Naya Karwa NGO, nodal officer of Delhi Minority Commission, president of Sir Syed Educational Social Welfare Society. He is also a team leader of Sir Syed Street School and a team leader of Anti-Dowry Movement. A very warm welcome from the AMP team. We are pleased to have you here, sir, with us. Thank you. Over to you, sir. जैसे कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि करियर को लेके बड़ी पेशोपश रहती है, बड़ी कश्मकश स्टूडेंट्स की रहती है
डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें करियर में क्या करना चाहिए, कैसे करियर का डिसीजन लेना चाहिए। अलग अलग तरीके से लोग करियर को डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, फिर वो बताते हैं कि भाई वो अनएम्प्लॉय हैं, उनको अभी तक जॉब नहीं लगी। तो ये जो सारी रीजन होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि हम करियर को ठीक से अपने डिसाइड नहीं करते। जब तक हम अपने लिए बेटर करियर ऑप्शन को नहीं डिसाइड करेंगे, ऐसे करियर को नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए बेहतर हो, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तब तक हमारा जो रिजल्ट है हमारे परफॉर्मेंस का, हमारी जॉब प्रोफाइल में, वो फिट नहीं होगा और हमारे सक्सेस होने के चांस जो है वो कम होते रहेंगे। हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उससे बढ़ेगी। तो इसलिए जो मैं आज आप लोगों से यहाँ बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि आप अपने लिए बेटर करियर ऑप्शन को किस तरीके से डिसाइड करें और आपके लिए बेहतर क्या होगा। मैं एक साइकोलॉजिकल पैटर्न पे आप लोगों से बात करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्वालिटीज की मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की, उन क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके अंदर उसमें से क्या क्वालिटी है और किस क्वालिटी के साथ जाकर आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो प्लीज शेयर द स्लाइड। कि करियर होता क्या है, करियर को लेकर जो स्टूडेंट्स है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई अपनी जॉब प्रोफाइल को करियर समझ लेता है, कोई अपनी सक्सेस को करियर समझ लेता है। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि करियर होता क्या है, तब तक आप लोग आगे उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आपको डिसीजन लेने में जो है मदद नहीं मिल पाएगी, जब तक आप ठीक से इस चीज को नहीं जान पाते कि भाई आपको करियर जो है किस तरीके से आप लोग उसको डिसाइड कर रहे हैं। करियर को, करियर है क्या। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा इसी पर हम लोग करेंगे। तो स्लाइड मूव कर दीजिए, सारे ऑप्शन एक बार में ला दीजिए, मैं बात करता रहता हूँ। जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें करियर काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये होता है कि करियर काउंसलिंग की जरूरत स्टूडेंट्स को है क्यों। अब मूव करते ना, ये पूरी स्लाइड कर दीजिए की बात। तो पहला सवाल आता है कि करियर काउंसलिंग की जरूरत स्टूडेंट्स को क्यों है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, मोस्टली हमारे इंडियन जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि करियर काउंसलिंग का जो पैटर्न है देश भर के अंदर हमारे, वो बहुत वीक पैटर्न है, बल्कि ये समझिए कि ना के बराबर है। एक तो करियर काउंसलर की कमी है, दूसरा हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। अगर कुछ करियर काउंसलर हैं भी तो उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक साधारण परिवार का उसको बियर नहीं कर सकता, और उसको नॉलेज वहां से अपने करियर ऑप्शन के बारे में मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो पहले स्टूडेंट्स का क्या मसला होता है कि वो अपने फ्यूचर को लेके कोई प्लान पहले से नहीं करते। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने घर से निकले और कहीं आप लोग चलने लगे और फिर आपको पता ही नहीं था जाना कहाँ है। तो ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। लेकिन करियर का जब हम सिलेक्शन की बात आती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन करना क्या था ये उन्हें नहीं पता चलता है। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, जब तक हम उसके लिए प्लान तैयार नहीं करेंगे बेहतर, तब तक जो है हम सक्सेस होने के चांस जो है वो हमारे बनेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्राउड को फॉलो करते हैं। मान लीजिए 10th क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं किसी में। अब कोई बच्चा जो है वो मैथ में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग वर्क में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को हिस्ट्री पे बहुत अच्छी कमांड हो सकती है। अलग अलग बच्चों के इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम एक क्राउड को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि भाई ठीक है, क्लास का वो लड़का अच्छा पढ़ने में था, वो क्या सब्जेक्ट ले रहा है, मैं भी वही ले लेता हूँ या वही सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो एबिलिटी है हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, और हम यूटिलाइज किसका करते हैं, जो दूसरा बच्चा था, या फिर आस पड़ोस के बच्चे हमारे होते हैं, या फ्रेंड सर्कल के होते हैं, परिवारों के मिलने वाले रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं। तो हम लोग उनको देखकर, उस भीड़ को देखकर हम लोग उसको फॉलो करने लगते हैं कि भाई ये इधर जा रहे हैं तो शायद ये करियर ऑप्शन अच्छा है, हम इस तरफ चले जाते हैं। जबकि हमारी एबिलिटी क्या है हमें उसके लिए देखना जरूरी है। जब तक हम अपनी एबिलिटी को नहीं जानेंगे, अपने अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस चीज में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तब तक भीड़ के पीछे जाने से हमेशा नुकसान होगा। प्लीज मूव।
ये सारे ऑप्शन ला दीजिए एक बेंच के, ये 6-7 ऑप्शन है एक बार में। अब होता क्या है, बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो करियर डिसीजन की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो करियर का डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेकिन जो कुछ डिसीजन लेते भी हैं वो किसी दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। पता लगा कि हमारे मोहल्ले में कोई बहुत बड़े नाम के डॉक्टर साहब हैं, तो बच्चे ऐसी इमेज बना लेते हैं कि जी मुझे भी ऐसा डॉक्टर बनना है। कहीं हम देखते हैं कि जी कोई एडवोकेट साहब है बहुत बड़े, तो हम अपना एम बना लेते हैं कि जी हम भी उनकी तरह एडवोकेट बनेंगे। तो इस तरीके से हम जब दूसरों को देख के मुतासिर होते हैं, तो जो हमारे अंदर की एबिलिटी है उस पर तो हमने काम किया नहीं कुछ। और जब एबिलिटी पर काम नहीं होगा तो सक्सेस के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपना एक जो फैसला है वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं एक तरीके से। वो डिसाइड कर देते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा होकर ये बनेगा। बहुत सारे माँ बाप मैंने देखे वो बचपन में डिसाइड कर देते हैं कि भाई हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। ठीक, आप जो उसको बनाना चाहते हैं उसकी एबिलिटी उसके लिए है या नहीं है, वो इस चीज की करनी चाहिए। हम चाहते हैं किसी को इंजीनियर बनाना और उस बच्चे का मैथ में मन नहीं लगता, तो वो कैसे इंजीनियरिंग के तरफ जाएगा, फिजिक्स कैसे वो हैंडल कर पाएगा चीज़ों को। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे उसके, और जिस काम में वो गया है उसमें मन लगाकर वो काम भी नहीं कर पाएगा। अब एक चीज क्या होती है कि स्टूडेंट जब करियर को डिसीजन करने जाते हैं तो वो ट्रेंड को देखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले एक एमबीए का बहुत क्रेज रहा था, बहुत बच्चों ने उसको देखा कि भाई एमबीए आया है और इसको लोग कर रहे हैं, अच्छी जॉब मिल रही है, उसकी तरफ गए। और उसके बाद क्या हालत हुई, उसके बाद ये हालत हुई कि बहुत सारे बच्चों ने एमबीए कर लिया, लेकिन उतनी जॉब्स अवेलेबल मार्केट में नहीं थी जितने स्टूडेंट्स पहुंच गए थे। जॉब किसको मिली, कौन लोग सक्सेस हुए उसमें, जिनके अंदर उसको करने की एबिलिटी थी, जिनके अंदर पैशन था। एमबीए से रिलेटेड जो चीज रिक्वायर होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो स्टूडेंट्स उसके अंदर आज भी सक्सेस हैं। लेकिन जो सिर्फ ट्रेंड को देख के चले गए, वो बच्चे जो है बाद में जॉबलेस हो जाते हैं। अगर जॉब मिलती भी है कहीं तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, 1 साल बाद या 6 महीने बाद उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं होता जो मार्केट की डिमांड होती है या उनकी जॉब प्रोफाइल की डिमांड होती है। तो वो जो बच्चे हैं वो डाउन आ जाते हैं और उन्हें जॉबलेस होना पड़ता है, जॉब छोड़नी पड़ती है, प्रेशर को जॉब से नहीं झेल पाते वो, या उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है, उनकी जगह किसी दूसरे को रख दिया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप कहाँ गए थे, आप ट्रेंड के पीछे गए थे, आप अपनी एबिलिटी के पीछे नहीं गए थे। नेक्स्ट क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी करियर में जंप कर जाते हैं, सोचते ही नहीं करना क्या है। बहुत बड़ी तादाद हमारे देश के अंदर बच्चों की क्या है कि वो 12th की, उन्होंने 12th के बाद वो बीए कर लेते हैं सिंपल, या प्रोग्राम या पास कोर्स जैसे कोर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो गए वो। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरियों के जो अवसर हैं वो गवर्नमेंट, अगर जॉब की हम बात छोड़ दें, करियर की गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन होती है, तो बाकी फील्ड में एक आम ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति की, बच्चे की वैल्यू मार्केट में नहीं होती, क्योंकि उसके लिए कोई भी जॉब प्रोफाइल बनी नहीं है। जब जॉब प्रोफाइल नहीं बनी है जिस कोर्स को करने के बाद, और आपने उस कोर्स को कर लिया, तो यकीनन फिर आपको जॉबलेस घूमना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मास्टर भी कर लेते हैं इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट उठाकर, तो भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होनी आपकी, एबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी आपकी, दूसरा मार्केट के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बच्चों को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे समाज में मोटिवेशन की बहुत कमी है, मोटिवेटर भी कम है, करियर काउंसलर भी कम है। स्टूडेंट्स जब कश्मकश में होता है कि उसको जब डिसाइड करना होता है करियर, वो लोगों के पास जाके उनसे मशवरा भी लेता है, तो उसको गाइड करने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर जो एनर्जी की जरूरत होती है उस टाइम, वो एनर्जी देने वाले, उसको सही रास्ता बताने वाले या ठीक से काउंसलिंग करने वाले जो लोग हैं, वो उसको लोग मिलते नहीं ऐसे। तो इसलिए क्या होता है कि वो दूसरों को देखकर फिर अपने करियर की तरफ चल देता है, और वहां फिर जाकर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी, क्योंकि मुश्किल होती है, बहुत रेयर केस होता है ऐसा कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करें और उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो वो बच्चे अनसक्सेस हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि हमारे देश के अंदर जो है बेरोजगारों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
एजुकेशन का स्टेटस भी बढ़ रहा है, लोग एजुकेटेड भी हो रहे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की जो पिछली गिनती थी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है जॉबलेस लोग हो रहा है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उन्होंने मास्टर डिग्री की है और उसके बाद में वो सब्जी बेच रहे हैं या कुछ छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जब वो परफॉर्मेंस की एबिलिटी नहीं होगी तो फिर समस्याएं आएंगी हमें करियर को डिसाइड करने में, आगे फ्यूचर में खुद को सक्सेस करने में। तो ये जो सारी चीजें होती हैं मिलकर, ये हमारे लिए डिसाइड करती हैं कि हमें करियर की जरूरत क्यों है। क्योंकि ये जब तक समस्याएं हमें पता नहीं होंगी कि करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है, तब तक आप करियर को डिसाइड करने के बारे में अच्छा फैसला नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है। प्लीज मूव द स्लाइड। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जब वो लोग अपने आप को आगे लेने के जानने के बारे में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा एक इसमें लास्ट पॉइंट था, वो स्लाइड में नहीं था तो वो स्किप हो गया। ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद के बारे में नहीं जान पाते। अपनी एबिलिटी जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर योग्यता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तब तक जो है परफॉर्मेंस का मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए जो आज हमारा ये सेशन रहेगा वो इसी बात को सेंटर में रखते हुए बात हम करेंगे कि एबिलिटी कैसी कैसी हो सकती है और किस स्टूडेंट्स के अंदर क्या एबिलिटी है, तो वो किस तरफ जाने के बारे में सोच सकता है। तो यही हमारा आज फोकस रहेगा। प्लीज मूव द स्लाइड। अब जब स्टूडेंट जब कैरियर डिसाइड करने के तरफ जाते हैं, तो वो लोग जब देखते हैं तो उनके कुछ सवाल होते हैं मन में। उन सवालों को लेकर वो जॉब का डिसीजन लेते हैं, अपनी प्रोफाइल का डिसीजन लेते हैं, अपने कैरियर मेकिंग का डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो जो क्वेश्चन होते हैं तो ज्यादातर बच्चों के मन में जो क्वेश्चन होने चाहिए वो नहीं होते। उसके अपोजिट वो दूसरे क्वेश्चन लेकर उसके ऊपर काम करने लगते हैं, उसको सही मान के वो लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट का एक गलत क्वेश्चन होता है खुद से, वो ये होता है कि कौन सी जॉब जो है वो डिमांड के अंदर है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एमबीए के बारे में। जिस टाइम एमबीए की शुरुआत हुई थी और मार्केट में काफी साल तक जो है एक ट्रेंड रहा था, पूरे बहुत लोग जॉब मिलती थी इस सेक्टर से जाकर, और एकदम बूम सा आ गया था मार्केट में इस मामले में जॉब को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज का वक्त हम देखें अगर, तो वो बूम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज उस सेक्टर में जॉबलेस बहुत ज्यादा हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट में डिमांड थी उसकी, लेकिन बाद में जो है उसकी डिमांड खत्म होती गई, या यूं कहिए वो डिमांड फुलफिल हो गई। जब फुलफिल हो जाती है तो फिर जो भी जॉब देने वाले लोग हैं वो तलाश करते हैं उन लोगों की जिनके पास उस काम को करने की अच्छी एबिलिटी होती है। जब एबिलिटी नहीं होगी तो फिर जॉबलेस होना शुरू हो जाएंगे लोग। तो ये बड़ी दिक्कत जो है बच्चों के साथ आती है, वो सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि वो जॉब की जो डिमांड है मार्केट की, उस डिमांड के पीछे चले जाते हैं और डिमांड की वजह से ही उनका करियर जो है वो खराब हो जाता है, वो जॉबलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट। दो तीन ऑप्शन एक ही बार में कर दीजिए आप ताकि मैं बोलता रहूं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें उन्हें सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये भी फैसला एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैलरी हो सकता है अच्छी मिल जाए आपको, लेकिन उस सैलरी को आप मेंटेन कब तक कर पाएंगे, उसके लिए जो योग्यता आपके अंदर चाहिए, जिस एबिलिटी की जरूरत है, वो एबिलिटी कितनी है आपके अंदर। खास बात ये होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई ठीक है मैं पढ़ाई करके कहीं विदेश चला जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं जॉब करूंगा, तो वो देखते हैं कि भाई मैं विदेश जाकर किस सेक्टर में मुझे जॉब मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे उसको लेकर अपने करियर को बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और उससे उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि आपको जॉब प्रोफाइल अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखनी चाहिए। मार्केट ट्रेंड या सैलरी का पेइंग स्केल या जो भी चीजें, इन चीजों को अगर देख के करेंगे तो फिर समस्याएं जो है वो फ्यूचर में आनी आनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें मैं कम से कम काम करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए।
और इसलिए अक्सर मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है टीचिंग की तरफ भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई 4-5 घंटे इनको पढ़ाना पड़ता है और उसके बाद में इन्हें सैलरी जो है अच्छी मिल जाती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसके लिए जो एक टीचर के लिए जो स्किल की जरूरत थी, वो स्किल उनके अंदर कितना डेवलप है, कितना उन्होंने खुद को उसमें इम्प्रूव किया है, कैसे वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्या वो उस तरीके से टीचिंग कर सकते हैं जिस तरीके से जरूरत होती है टीचिंग की। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि जो मिनिमम एफर्ट है, मिनिमम एफर्ट कुछ नहीं होता। आपको अपना जो भी आपकी जो प्रोफाइल होगी उसमें मैक्सिमम आपको एफर्ट करना होगा। जब आप मैक्सिमम एफर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस के चांस जो है बढ़ेंगे, और अगर आप नहीं करते तो उसमें आपके सक्सेस के चांस जो है वो घटते रहेंगे। प्लीज मूव द स्लाइड। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो देखते हैं कि आ, ऐसा कौन सा करियर है जिसमें मुझे प्रमोशन तेजी से मिल जाए। मान लीजिए मैंने आज छोटी प्रोफाइल पे उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसमें जो है प्रमोशन जल्दी जल्दी किस फील्ड में हो सकता है। एक स्टूडेंट्स का ये भी जब करियर डिसाइड करने जाते हैं तो इस तरीके की भी सोच उनके जहन में होती है। और एक सोच ये भी होती है कि भाई कौन सा ऐसा करियर ऑप्शंस है जो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। जैसे क्योंकि जैसे जैसे समाज में बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कई चीजें ऐसी हैं, कई फील्ड ऐसे हैं जो बड़ी तेजी के साथ जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उतनी तेजी के साथ उनके घटने के भी चांस होते हैं, या फिर उन लोगों के लिए स्कोप खाली बचता है जिनकी परफॉर्मेंस उसके अंदर ज्यादा अच्छी होती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप करियर डिसाइड करने जा रहे हैं तो आपके जो सवाल होने चाहिए, मैं कुछ यहाँ सवाल आप लोगों के लिए मैंने नोट डाउन किए हैं कि वो सवाल आपसे क्या होने चाहिए आपसे आपके लिए। तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए जब वो करियर डिसाइड करने जा रहा है कि भाई ऐसी क्या चीज है जो मुझे खुश कर सकती है, जिस काम को करने से मुझे अच्छा लगता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उनका कोई एक पैशन होता है, उसमें वो आप 4 घंटे उनसे काम कर लीजिए, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो बिना थके उसमें आप काम कर सकते हैं। तो जब वो उसमें इस तरीके से वो काम कर सकते हैं, तो अगर वो उसको अपना करियर बनाते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छे होने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका खुद का ड्रीम क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या अपने लिए फ्यूचर में सोचते हैं कि आप कैसे होने चाहिए, अगले 10 साल बाद आप किस जगह होने चाहिए, 20 साल बाद आप किस जगह होने चाहिए। क्योंकि ये जो करियर है ये 2 दिन की जर्नी नहीं है, इसमें आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करना होता है। और एजुकेशन के बाद की जो आपकी लाइफ शुरू होती है वो पूरी लाइफ आपकी करियर के लिए जाती है। जो भी आप काम करते हैं पूरी जिंदगी आप करना होता है। तो इसीलिए आपको ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज आपके मन को किस चीज से अच्छा लगेगा, कौन से ऐसे काम है जो आप करेंगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। ऐसे बहुत से काम हैं जिससे इंसान को अंदर से खुशी मिलती है। और वो जिन कामों से खुश हो रहा है, अगर उन कामों को वो करियर में डिसाइड कर ले तो उसके सक्सेस होने के चांस जो हैं वो काफी हो जाते हैं। और स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि वो वास्तव में रियलिटी में क्या कर सकता है या उसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और लास्ट होता है कि आपके अंदर किस कौन सा काम ऐसा है जिसको लेके आपके अंदर जुनून है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के। या फिर आपने लता मंगेशकर जो बहुत अच्छी सिंगर रही हैं उनका नाम सुना होगा। सोचिए जरा, ये लोग अगर जो इनके अंदर पैशन था, सचिन के अंदर क्रिकेट का पैशन था, उनके अंदर सिंगिंग का पैशन था, अगर ये अपने पैशन को छोड़कर कुछ और करते, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर सोचते कि ठीक है जी मैं सिंगर बनूंगा, तो उनकी परफॉर्मेंस फिर कैसी होती। क्या वो इतना दुनिया में जो आज नाम उन्होंने कमाया है, क्या इतना नाम वो कमा सकते थे दूसरी तरफ जाकर। या फिर लता मंगेशकर सोचती कि भाई मैं सिंगिंग की जगह मैं एक्टिंग में जाती हूँ, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस होती, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रहती। यकीनन जो आज उनकी परफॉर्मेंस रही है उन लोगों की, वो अगर वो दूसरी फील्ड में जाते तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी होनी बहुत ही मुश्किल थी, बल्कि ये कहिए कि नामुमकिन था।
हम सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं जान पाते अगर वो क्रिकेट की तरफ नहीं आते, क्योंकि उनका जो पैशन था वो क्रिकेट था। और उस पैशन को उन्होंने चुना, और पैशन को चुनने के बाद उस पर उन्होंने मेहनत की। और मेहनत इसलिए कर पाए क्योंकि उनका पैशन था। उस जब पैशन होता है तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या डेली रूटीन में उस काम को करना हमारे लिए इजी हो जाता है। हमसे जबरदस्ती नहीं कराया जाता। जब काम जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा, हम खुद उसको मन से करेंगे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। और वही काम अगर हमसे जबरदस्ती कराया जाने लगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। और एक न एक दिन जहां हम जॉब कर रहे होंगे उन्हें बोलना पड़ेगा कि ठीक है भाई, आपकी एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, और हम आपकी जगह किसी और को यहाँ मौका देंगे। तो इसलिए जो पैशन है वो बहुत अहम है किसी भी काम को करने के लिए। तो अब सबसे पहली चीज ये आती है कि ये अब हम करियर डिसाइड करते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो हमें खुद को जानना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम अच्छा डिसीजन अपने करियर के बारे में नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हम जो सबसे पहली यहाँ शुरुआत करेंगे बताने के बारे में आज, वो ये शुरुआत करेंगे कि अपने आप को हम किस तरीके से ढूंढे अपने करियर के लिए। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब इसी में ये आगे सवाल आता है कि करियर का जो सिलेक्शन है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हर व्यक्ति, हर इंसान, ऊपर वाले ने, रब ने, अल्लाह ने यूनिक बनाया है। हर इंसान अलग है, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। हर इंसान का फिंगरप्रिंट जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर इंसान का जो आंखों का रेटिना होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे से अलग योग्यताएं होती हैं, एक दूसरे से अलग उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, अलग अलग पैशन होते हैं, अलग अलग दिलचस्पियां होती हैं बच्चों की। तो इसीलिए उन दिलचस्पियों के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, तो हर व्यक्ति को अपने बारे में यूनिक सोचना पड़ेगा। अगर हम ट्रेंड के पीछे चले जाएंगे तो फिर वो नुकसान हमें होने वाला है। हर व्यक्ति क्योंकि वो बिल्कुल अकेला अलग पैदा होता है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो भी उसे अलग लेना चाहिए। दूसरी भीड़ के साथ अगर वो जाएगा तो फिर तो सक्सेस होने के चांस जो है उसके बहुत ही कम होते जाएंगे। दूसरा ये है कि हम अपनी लाइफ के लगभग 40 साल अपने करियर में खर्च करते हैं। यानी हमारी लाइफ के जो 40 साल हैं, उन 40 साल हमको जो भी हम अपना करियर डिसाइड करते हैं उस पर काम करना होता है। और अब आप सोचिए, क्या कोई आप ऐसा काम 40 साल तक कर सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो। आपकी दिलचस्पी नहीं होगी तो आप 40 साल क्या, उसको 4 दिन करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत जबरदस्ती करेंगे तो 4 घंटे कर लेंगे, उसके बाद में फिर जो है आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें। और एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ में लगभग 80,000 घंटे अपने करियर के ऊपर काम करना होता है। अब ये 80,000 घंटे जो है ये बहुत अहम रखते हैं हमारे जिंदगी के, कि 80,000 घंटे हम ऐसा क्या काम है जो हम दिलचस्पी रखते हुए अच्छे पैशन के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हुए हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के सोशल वर्क में इंटरेस्ट होता है, तो जब उनका इंटरेस्ट सोशल वर्क में है तो उनको आप 80,000 घंटे नहीं, अगर 1 लाख घंटे भी उन्हें काम करना पड़ता है उसमें, तो वो इजिली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनकी दिलचस्पी है उस फील्ड में, वो चाहते हैं उस वक्त काम करना। तो उनका जो मन है वो खुद ब खुद उस तरफ लेके चलता है उन्हें। खुद ब खुद उनके पास क्रिएटिव आइडियाज जो है उसको लेकर आते हैं। शुरुआत भला जीरो से होती है, लेकिन उसके बाद में वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि उनके अंदर दिलचस्पी थी उसको लेके, पैशन था उसको लेके, एक जुनून था कि भाई हम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीजें जो हमारे अंदर पैशन होता है, अगर हम उसको जो है अपने करियर के साथ मैच कर लेते हैं, तो फिर हमारे जो करियर में सक्सेस के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जरूर आपको सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे किस चीज के अंदर हम काम कर सकते हैं। क्या ऐसा काम है जो 80,000 घंटे हम अपनी लाइफ के किस काम में खर्च कर सकते हैं। ये पूरी एक लाइफ है हमारी।
इस लाइफ को जब तक हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक रिजल्ट जो है हमारे करियर के अंदर, सक्सेस के अंदर, वो रिजल्ट जो है हमारे ऐसे नहीं होंगे कि हम लोग उसको कुछ ऐसा कर पाए कि हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए कि भाई इस सेक्टर में देखो, उनका काम देखो, उन्होंने कितना अच्छा किया है। वो अच्छा काम जो भी होता है वो सिर्फ इसलिए होता है, सक्सेस इंसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका पैशन उस काम को लेकर होता है। जब पैशन होगा तो सक्सेस खुद ब खुद हमारी तरफ चली आएगी, हमें सक्सेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ आइडियाज क्रिएट करने हैं और उस पर काम करना है, और काम करने के बाद रिजल्ट जो है वो हमारे पास खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। प्लीज मूव द स्लाइड। अब करियर को जब हम डिसाइड करते हैं, अपने करियर ऑप्शंस के लिए जब हम आगे की तरफ जाते हैं, तो ये एक जो है हमारा करियर व्हील मैंने यहाँ दिया है आप लोगों को। सबसे पहला जो इसके अंदर है वो ये है कि आप खुद को जाने। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते, जब तक हम बेटर करियर ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे जो पहली चीज है वो खुद को जानना है। खुद को जानने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा कि हम उसके अंदर करियर ऑप्शंस को देखें कि भाई अब ये मेरा शौक है, इससे रिलेटेड क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जाम दिया था। मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो और यह जुनून है उसका। मैंने देखा है जुनूनी लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए। जो आज इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है, इसमें भी दोपहर के 2-2 बजे वो लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये उनके अंदर ऐसा जुनून है, अगर इसको ठीक से मॉडिफाई कर दिया जाए, ठीक से उन्हें गाइड कर दिया जाए, तो वो चीज बहुत आगे जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम करियर ऑप्शन को कैसे डिसाइड करें। मान लीजिए किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है। अब क्रिकेट अच्छा लगता है, तो क्रिकेट अच्छा लगने के बाद में उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। मान लीजिए वो बैट्समैन बन सकता है, वो बॉलर बन सकता है, वो विकेट कीपर बन सकता है, वो ऑलराउंडर बन सकता है, वो मैच रेफरी बन सकता है, वो एम्पायर बन सकता है, वो पिच मेंटेन करने वाला बन सकता है, वो स्टेडियम को मेंटेन करने वाला बन सकता है, वो अच्छा कमेंटेटर बन सकता है। तो देखिए कितने बहुत सारे, एक फील्ड थी सिर्फ क्रिकेट, और इसके अंदर कितने बहुत सारे जो ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किए तो वो सामने आ गए। हर फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर होते हैं। अब जब वो डिसीजन ले लेगा कि ठीक है जी, अब मुझे जो है एक बैट्समैन बनना है, तो ये जो होगा उसका थर्ड स्टेप होगा, ये उसका डिसीजन हो गया कि भाई मैं एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहता हूँ। ये मैं गेम के एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाते हैं चीजें, और आप लोग इस पर इजीली फिर वर्कआउट कर सकते हैं। जब आप एक डिसीजन ले लेंगे, मान लीजिए क्रिकेटर ने डिसीजन ले लिया कि मैं बैट्समैन बनना चाहता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ में लिया था, उसके बाद में फिर उस पर उसको काम शुरू करना होता है। और उस पर काम शुरू करने के बाद वो रफ्ते रफ्ते उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास उसको लेकर जिन स्किल की जरूरत है वो नहीं होते, तो कई स्किल डेवलप करने पड़ते हैं, रफ्ते रफ्ते सीखने पड़ते हैं, और कई हमारे अंदर अंदर से खुद मौजूद भी होते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो फिर ट्रेनिंग, कोचिंग, या जो भी आप कोर्स करते हैं, उसके लिए डिग्री लेते हैं या सर्टिफिकेट डिप्लोमा करते हैं, वहां जाकर आपके ऊपर उस पर पॉलिशिंग होती है और आपको मौका मिलता है अपने करियर को आगे बढ़ाने का। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब जो 10th क्लास के बाद में हम लोगों के पास 4 करियर ऑप्शन होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 10th करता है, 10th के बाद में जो है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको किस तरफ जाना है। तो जो करियर काउंसलिंग है वो 10th क्लास में हो जानी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता था और वो 12th क्लास में चला जाता है, और वो आर्ट आर्ट ले या कॉमर्स ले या कोई और सब्जेक्ट वो ले लेता है, या वो बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स ले लेता है और वो डॉक्टर बनना चाहता था, तो फिर उसके सक्सेस होने के चांस, तो क्योंकि वो 10वीं के बाद खत्म कर चुका है, उसको 11वीं में अगर डॉक्टर बनना था तो उसको बायोलॉजी से आगे अपना करियर बढ़ाना था, 12th में उससे कंटिन्यू चलना था। उसके बाद में उसके अपने जो और करियर ऑप्शन है जिसमें वो जाना चाहता था,
कौन सा डॉक्टर बनना चाहता था, तो उस तरफ वो उसके बाद काम कर पाएगा। लेकिन क्योंकि जो बेसिक्स से स्टार्ट होता है आपके करियर का, वो फॉरन 10th क्लास के बाद स्टार्ट हो जाता है। 10th क्लास होते ही आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए अब अपने करियर के लिए। तो ये चार ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास हमारे देश के अंदर हैं। पहला कि वो 10th के बाद में आर्ट साइड में चला जाए, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसको ले ले, या फिर दूसरा होता है वो कॉमर्स की तरफ चला जाए, या फिर साइंस के अंदर दो ग्रुप हैं। हालांकि आमतौर पे आप जानेंगे तो आपको एक ग्रुप बताया जाता है, लेकिन साइंस में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है मैथमेटिक्स का आपका, दूसरा ग्रुप होता है आपका बायोलॉजी का। मैथमेटिक्स के लिए अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स की तरफ जा सकते हैं, साइंस का मैथमेटिक्स वाला ग्रुप ले सकते हैं। या फिर आप अगर डॉक्टरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल के लिए फिर बायोलॉजी का ग्रुप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम साइंस को दो ग्रुप में यहाँ डिवाइड करके चलें साथ साथ, इसको हम समझते हुए चलें। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। वन मोर। अब यहाँ बात आती है जब हम करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी एडवाइस है आज के करियर को लेकर, वो ये है कि हर किसी की आप ना सुनें। क्योंकि जब आप करियर को डिसाइड करने जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान आपको ज्ञान देने वाला बन जाता है। जिसको नहीं पता वो भी ज्ञान देने लगता है आपको। कुछ कहते हैं ये करियर ऑप्शन अच्छा, कुछ कहते हैं कि यार ये कौन सा करियर ऑप्शन तुमने ले लिया, ये तो बहुत खराब है, इसका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अच्छा डिसीजन होने के बाद भी जिन्हें लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि हर किसी की हम ना सुने। अगर हम हर किसी की बात सुनेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और वो जो कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन का हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस वहाँ खराब होने लगेगी, और हम जो डिस्टरबेंस हमारे साथ शुरू हो जाएगा। और जब हम डिस्टरबेंस में चले जाएंगे तो फिर हमारा जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो माइनस की तरफ आ जाता है, निगेटिव हम माइंड में चीजें क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए एक तो हर किसी की ना सुने, और जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव सजेशन देने वाले लोग हैं, डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, उनसे हम जो है वो जरूर दूर रहें। अब यहीं साथ में एक आपको मैं एक एग्जांपल और देता चलता हूँ। अ, आप देखते होंगे कि जब एडमिशन्स का टाइम आता है या फिर कोई एग्जाम आने वाला होता है गवर्नमेंट का, तो बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर हैं वो अपने बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग चीज़ों से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई मान लीजिए हम नीट की बात करें कि भाई हमारे यहाँ से जो है इन 40 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। तो उनके बोर्ड को देख के ऐसा हमें सपना लगता है कि अगर हम यहाँ एडमिशन ले लें तो हम नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। नीट का मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कोर्स हो सकता है उसमें। कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, या कोई दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है, या कोई एडवोकेसी की तरफ जाना चाहता है। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, आईएएस आईपीएस की तरफ जाना चाहता है, सिविल सेवा की तरफ जाना चाहता है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये हर व्यक्ति को एक सपना दिखा देते हैं बोर्ड लगा। उन 50 बच्चों की लिस्ट लगा देते हैं ये, जो उनके यहाँ से गाइडेंस लेकर या उनके यहाँ से कोर्स करने के बाद सक्सेस हुए। लेकिन उन्हीं के यहाँ, हाँ, ये 40-50 बच्चे तो सक्सेस हुए, लेकिन इन 40-50 बच्चों के अलावा जो हजारों बच्चे अनसक्सेसफुल हुए, उनकी कोई बात नहीं होती। अब मसला ये आता है कि किस तरीके से जो है बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए। भाई, जो 50 बच्चे उनके पास हुए लेकिन 10,000 बच्चे उनके अनसक्सेसफुल हुए, तो उन 10,000 पे चर्चा नहीं होती। तो ये जो लुभावनी जो बातें हैं, इनकी तरफ ना जाके हमें ग्रास रूट से अपने करियर को बनाने के लिए जो है चलना चाहिए, ताकि हम लोग इजिली जो है उसको मेंटेन कर पाए। प्लीज मूव द स्लाइड। अच्छा, इसमें एक जो हमारा सजेशन है वो एक और सजेशन है साथ साथ में, कि आप लोग जो है आंखें बंद करके कभी भी अपने फ्रेंड्स को, या जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है
उस ट्रेंड को हम लोग ना फॉलो करें, क्योंकि अगर हम आंखें बंद करके फॉलो करेंगे तो फिर हमारा जो अपनी एबिलिटी है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, अपने पैशन को नजरअंदाज कर देते हैं। और वक्त क्योंकि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा लग रहा है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीफ हम चीजों को करके आगे चलें, ताकि आप लोगों को जो है जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ जाए, हम जो हमें टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें चीजें क्लियर करें। सो प्लीज मूव द स्लाइड। अब ये बात शुरू हो जाती है, मूव मूव टू स्लाइड, कि भाई मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, कैसे मैं अपने करियर ऑप्शन को जो है यहाँ पर खुद के बारे में जाने। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइप ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। आप प्लीज मूव द स्लाइड। तो तीन तरीके के बच्चे जो हैं वो होते हैं, जब हम एजुकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं तो तीन तरीके के बच्चे ये आते हैं। ये तीन मैंने यहाँ इमेज दी है, इन इमेज को देख के आप इमेजिन करिए कि क्या क्या आपको महसूस हो रहा है। आप इसमें इमेजिन कर लीजिए, ताकि मैं आपको बताऊं तो आपको वो समझने में आसानी हो। इमेजिन खुद कीजिए आप, और मुझे लगता है आपने इमेजिन कर लिया होगा। तो सबसे पहले जो दिखाया है, एक बच्चा बुक लेकर पढ़ रहा है। तो पहली एबिलिटी बच्चों के अंदर क्या होती है कि एक तो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हें किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर उनका बच्चे साथ के बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं और उनके पापा को उनको बुक ला के देते हैं, तो वो बाहर खेलने की जगह उस बुक को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके के बच्चों को अगर हम आम भाषा में बात करें तो ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ाकू कह सकते हैं। आम भाषा में आपने सुना होगा कि भाई वो बहुत पढ़ाकू है। तो कुछ बच्चों के अंदर एबिलिटी होती है पढ़ने की, उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी जो कैटेगरी है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं घेरा सा बनाकर। दूसरे बच्चे होते हैं जिन्हें खेलकूद करना बहुत पसंद होता है। ये क्या करते हैं कि एक अनजान आदमी से भी ये बहुत आराम से दोस्ती कर लेते हैं, बातचीत, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और इजिली ये जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरों को अपनी तरफ खींच पाते हैं, घुल मिल जाते हैं जाकर। और जो थर्ड है इसके अंदर, थर्ड आप दिखा कि एक बच्चा अकेला खड़ा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें एकांत प्रेमी हम कह सकते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, अकेले रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दूसरों से कम बात करते हैं, अकेले ज्यादा रहते हैं। प्लीज मूव द स्लाइड। अब इसमें जो पहला वाला जो हमने कहा था कि भाई बच्चे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो हम इन बच्चों की क्वालिटी की हम बात करेंगे। तो ये एकेडमिक ओरिएंटेटेड टाइप चिल्ड्रन होते हैं। इनको क्या अच्छा लगता है? इनको अच्छा लगता है कि ये बहुत, एक तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इनकी बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट बहुत हो जाता है, अच्छा होता है इनका। और इनको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ने में, चीजों को सीखने में, भला वो बुक्स के जरिए सीखें या इंटरनेट के जरिए सीखें, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके के बच्चों को, क्योंकि मैंने बताया कि एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, तो ये बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं। और जो बच्चा बुक्स या रिसर्च, इंटरनेट या बुक्स के जरिए चीज़ों को सीखता है, उसको लाइक करता है, पसंद करता है उसको, तो उसकी परफॉर्मेंस उसके अंदर बहुत अच्छी आती है। प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे बच्चे जो थे वो प्यूपल ओरिएंटेड, जिनको खेलना कूदना अच्छा लगता है, आसानी के साथ वो दूसरे बच्चों के साथ में कम्युनिकेट हैं, जो एक अन्य व्यक्ति उससे भी आसानी से बात कर सकते हैं। और फ्रैक्चर हो, प्राणी वैसे तो सभी समाज, लेकिन इन बच्चों के अंदर जो है ज्यादातर जो है ऐसी चीज होती है। तीसरी जो क्वालिटी होती है इसमें, ये क्रिएटिव माइंड के बच्चे होते हैं। के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर आर्टिस्ट होते हैं, किसी को सिंगिंग बहुत पसंद होती है, किसी को जो है पेंटिंग बहुत पसंद होती है, या इस तरह की चीजें। ये जो बच्चे होते हैं ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इन्हें खेलना अच्छा नहीं लगता ज्यादा, इन्हें ज्यादा पढ़ना भी जो है अच्छा नहीं लगता, अकेले रहना इनके लिए इनकी खासियत होती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब इन तीनों तरीकों के जो बच्चे हैं, आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको इन तीनों कैटेगरी में से खुद को किस कैटेगरी में रखें। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं, हम उस पर आगे बात करेंगे। प्लीज मूव द स्लाइड।
अब बात आती है जो हमने यहाँ 4 ग्रुप दिखाए थे आपको 10th के बाद में। तो उसमें ये है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो ग्रुप ए था साइंस का, जो मैथमेटिक्स वाला था, उसमें जो बच्चे जा सकते हैं या उनकी दिलचस्पी होती है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वो इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, नेवी के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं, या एस्ट्रोनॉट वो बन सकते हैं। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब इनके अंदर जो हमने 3 स्किल्स की बात कही थी, एक पढ़ाकू वाला जो स्किल है इनके अंदर, वो वेरी हाई होना चाहिए। वेरी हाई का मतलब ये है कि उन बच्चों को जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी कि वो 6 से 8 घंटे भी अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तो वो इजिली जो है उसके अंदर अपना टाइम एक्सपेंड कर पाए, बोरियत महसूस उन्हें पढ़ाई करने में ना हो। तो ऐसे बच्चे जो हैं, इन्हें जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर जो है अच्छी दिलचस्पी होनी चाहिए। मैथ से जुड़ी चीजें, मशीनें कैसे काम करती हैं, इसमें उन्हें दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर वो नेट पर सर्च भी कर रहे हैं तो वो यूट्यूब पर ये देखेंगे ये मशीन है, ये कैसे वर्क करती है, इसको मैं समझूँ, ये कैसे बनी। इस टाइप की दिलचस्पी उन बच्चों के अंदर होनी चाहिए, और ताकि वो जो है अ, इसके अंदर बच्चे, फिर पता लगता है कि भाई उनके अंदर एबिलिटी है इस चीज को सोचने की, वो चीजों को सोचते हैं, वो लंबे टाइम वो कंप्यूटर पर या बुक्स पर स्टडी कर पाए इस चीज को लेके। और जो दूसरी फन एक्टिविटियां हैं, खेल कूद है, उसमें बहुत कम टाइम देने वाले बच्चे होने चाहिए। प्लीज मूव नेक्स्ट। अब दूसरी चीज आती है कि जो साइंस का हमने ग्रुप बी बताया था, उस ग्रुप बी के अंदर कौन से बच्चे होने चाहिए। इसके अंदर डॉक्टरी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, तो डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, या और बहुत सारे जो है कैटेगरी हैं मेडिकल लाइंस के अंदर, वहाँ वो कहीं भी जा सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने एक फर्स्ट लेवल जो बताया था पढ़ाई वाला, वो वेरी हाई होना चाहिए। वेरी हाई का मतलब है कि उन बच्चों की जो परसेंटेज है वो 85 प्लस रहनी चाहिए हमेशा। अगर 85% से ये लोग क्रॉस कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे जो है पढ़ने में बहुत अच्छी दिलचस्पी रखते हैं, और ये जो है जरूरत पड़ने पे और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपने स्टडी स्किल को, रिसर्च स्किल को, और ये अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन साथ के अंदर इनके अंदर जो दूसरा हमने खेलकूद वाली बात की थी, पीपल ओरिएंटेड बात की थी, वो भी जो है इनके अंदर हाई लेवल पर होना चाहिए। हाई लेवल का मतलब है कि इजिली वो दूसरों से बात कर पाए। पहली चीज हमने वेरी हाई ली है जो 85% से ऊपर हम लेकर जा रहे हैं। दूसरी हमने हाई ली है जो 70% से ऊपर हम मानेंगे। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो आधी बीमारी तो डॉक्टर से बात करके उसकी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये जो खेलकूद वाले बच्चों का था, ये स्किल भी होना उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब इनके अंदर भी वही सेम क्वालिटीज की यहाँ बात है कि पहले तो बायोलॉजी के अंदर इनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इनको दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये चीज़ों को याद रखने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ या दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद करनी भी पड़ती है उनको। और ये भी इनके अंदर सेम वही क्वालिटी होनी चाहिए 85% से ऊपर वाले बच्चों के अंदर, कि उन्हें बुक्स और कंप्यूटर्स के अंदर रिसर्च करना समझ जो है अच्छा लगना चाहिए, और इनके अंदर हाई प्रेशर के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर होता है, कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई मान लीजिए कोई जला हुआ व्यक्ति आपके पास आ जाता है, तो उसको भी आपको एकदम प्रेशराइज वाली स्थिति हो जाती है, वहाँ काम करना पड़ता है। या कहीं कुछ घटना हो जाती है, 8-10 लोग एकदम से हॉस्पिटल में ऐसे आ जाते हैं जो बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं, जिनके जो है परिवार वाले जो है रो रहे होते हैं या शोर मचा रहे होते हैं। तो उस प्रेशर को भी झेलना है और उसका इलाज भी अच्छी तरीके से करना है, तो प्रेशर झेलने की क्षमता भी इनके अंदर होनी चाहिए। और फन एक्टिविटी के अंदर, खेल कूद में, ये बहुत कम टाइम देने वाले बच्चे होने चाहिए। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब
जो सेकंड ऑप्शन आता है हमारा थर्ड कैटेगरी में, वो आता है कॉमर्स का। कॉमर्स के अंदर जाने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या जो फाइनेंस से जुड़े हुए सेक्टर हैं उसके अंदर हम लोग आसानी के साथ ये लोग काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो पढ़ाई वाला स्किल है वो वेरी हाई की जरूरत नहीं है, यानी 85% की जरूरत नहीं है इसमें। अगर 85% जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर कोई 70 प्लस भी जाता है, बच्चा स्कोर करता है, तो वो 70 प्लस वाला भी इतना एबल होगा कि कॉमर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो कर सकता है, अपने करियर को उसमें डिसाइड कर सकता है। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब इन बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो ये है कि ये मैथ और इकोनॉमिक्स में इन्हें दिलचस्पी होनी चाहिए, साथ में अकाउंट और बिजनेस मैनेजमेंट में भी इन्हें दिलचस्पी होनी चाहिए। गुड एनालिटिक स्किल इनका होना चाहिए, इन्हें दिलचस्पी होनी चाहिए कि भाई साल में बहुत सारे बैंक्स का या दूसरी कंपनीज अपना डाटा अखबार में पब्लिश करती हैं, उस डाटा को देख के ये एनालाइज करने चाहिए, बजट एनालाइसिस में करना आना चाहिए, मतलब उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। सीखेंगे तो चीज़ें कोर्स करने के बाद, उसमें एक्सपर्ट बनने के बाद, लेकिन कम से कम इतना हो कि उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी कंपनीज के देखना इन्हें अच्छा लगे। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत सब कुछ इजली जो है वो अवेलेबल है, चाहे कंप्यूटर पे उस चीज़ को समझें या फिजिकली समझें, किसी तरीके से भी समझने की इनमें दिलचस्पी होनी चाहिए। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। अब इसमें लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है कि आर्ट्स के अंदर कौन बच्चे जा सकते हैं। तो आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं, हिस्टोरियन भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, सिविल सेवा में भी आप जा सकते हैं, साइकोलॉजी में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं जिनको हम, जो 50 प्लस मार्क्स लाते हैं, नॉर्मल जो लोग पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी दिलचस्पी नहीं होती लेकिन एवरेज स्टूडेंट होते हैं, फेल नहीं होते, पास हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, मीडियम रहते हैं बच्चे, और खेल कूद भी इनका एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन नॉर्मल भी होता है तो वो चलता है। और इस तरीके के बच्चे जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि स्किल जो चीज़ है वो सीखने की चीज़ है, रफ्ते रफ्ते कुछ स्किल बहुत गिफ्टेड होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो कि हमें रफ्ते रफ्ते अपने अंदर डेवलप करने होते हैं, जैसे कि हमारी प्रोफाइल में उसकी नीड होती है उस तरीके से। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। और इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं बच्चों के अंदर, वो एक तो इंग्लिश उन बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे कोर्स में हम जाना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री की जरूरत है या फिर ज्योग्राफी की जरूरत है, तो उसमें हमें कमांड होनी चाहिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस की जरूरत है तो उसमें हमें उसकी कमांड होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, ताकि उसको हम थोड़ा सा समझ सके, उसमें बोरिंग महसूस ना करें खुद को। और आर्ट्स वालों के लिए क्योंकि थ्योरी रीडिंग ज्यादा होती है, तो थ्योरी रीडिंग ये लोग कर सकते हैं, बोर ना हो पढ़ने में, बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मीडियम जो है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही किताब खुल दी सर में दर्द हो गया और बच्चा सोचे कि जी मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। दूसरा, ये ऑब्जर्वर अच्छे होने चाहिए, जब ये व्यक्ति से बात करें तो इन्हें इतनी पहचान हो जानी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है ये कैसा है, इसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है इसका, और दूसरों के साथ बात करने में कंफर्ट होने चाहिए, इजी कम्युनिकेशन कर लेने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो, झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए इन लोगों के अंदर बात करने में। तो ये जो इस तरीके के जो स्किल होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये बच्चे जो है अपनी लाइफ में आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो स्किल नहीं है वो डेवलप किए जा सकते हैं। प्लीज मूव टू नेक्स्ट। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने बताई आपको कि करियर में आप किस तरीके से
डिसाइड करें और किस तरीके से उसको आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ सवाल हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें इसमें पूछा है कि भाई आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन इन बीएसडब्ल्यू फील्ड। तो ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से किस तरीके से ये जो है कोर्स इसमें कर सकते हैं सोशल वर्क के अंदर। तो देखिए, सोशल वर्क के अंदर विदेश जाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इंटर्नशिप के जरिए भी बुलाती हैं, आप इंटर्नशिप करने का मौका मिलते हैं। बाकी इंडिया के अंदर की बात करें आप, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उसके अंदर अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सक्सेस हो सकते हैं। एमयू के अंदर आप कर सकते हैं, और काशी विद्यापीठ बनारस के अंदर आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आया है कि कैसे पता चलेगा कि 10 साल बाद कौन सी फील्ड या जॉब ज़्यादा स्कोप रहेगा। तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि आपको इस चीज़ पर नहीं जाना है कि कौन सी फील्ड में या जॉब में स्कोप ज़्यादा रहेगा। हम सिर्फ अपने अंदर का जो हमारे अंदर स्किल है, उस स्किल के अकॉर्डिंग, उस पैशन के अकॉर्डिंग हम जब करियर डिसाइड करेंगे, तो फिर अगर कहीं पर जॉब कम भी है तो भी हम उसमें इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उसमें ऐसी होगी कि हम दूसरे जो कॉम्पिटिटर होंगे हमारे, वो इजीली हम वहां पर उनको बीट करके और पोजीशन ले सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर वो ये कि 5-10 साल बाद कौन सा करियर ऑप्शन ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसकी बात किसी ने पूछी है। तो मुझे लगता है इसको हमें नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा करियर ऑप्शन जो है ज़्यादा होगा। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस किस में अच्छी होगी, हमारा पैशन किसके अंदर अच्छा होगा। तो अगर पैशन है हमारा और परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर हम कहीं भी एडजस्ट होंगे, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा जॉब हो या ना हो। तो और कोई अगर यहाँ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो वो यहाँ कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ किसी ने एक नेक्स्ट सवाल ये किया है कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और मैंने कॉमर्स फील्ड ली है, ये हेल्पफुल है या नहीं है। देखिए, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए हेल्पफुल क्या होगा, क्योंकि मैंने बात की थी आपके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस आपकी जो होगी, जो आपका पैशन है उसको लेकर, अगर आपको कॉमर्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो फिर इजीली आप इससे भी क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपको क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट का जो चुनाव है वो आपकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये Yeah. खान ओमुल अ, चांद जी ने पूछा है कि मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है और फोटो वगैरह की जो फोटो खींचना है वो अच्छा लगता है। तो अगर ये आपका पैशन है इस टाइप का, तो फिर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर बहुत कुछ होता है। आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडी, और उसके अंदर मास्टर भी कर सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग तरीके से इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं, और वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, मेरे नाम से यूट्यूब सर्च करेंगे, तो इसके बारे में मैंने उसमें डिटेल से एक वीडियो बनाई है कि आप ट्रैवल इंडस्ट्री में कैसे उसको अपने करियर को बना सकते हैं, क्या कोर्सेज हैं, उसकी डीपली जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। So do you want me to read the questions or आप ही देख रहे हैं? I mean, you want to continue like this? नहीं, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, okay, okay, please continue, sir. अब इसमें नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि मैं स्टडी ओरिएंटेड हूँ, जो मैंने कैटेगरी बताई थी, एंड पीपल ओरिएंटेड साथ में हूँ, तो मैं साइंस ग्रुप में जा सकता हूँ। तो जो बच्चे स्टडी ओरिएंटेड हैं वो इजीली साइंस के कोई से भी ए या बी ग्रुप जिसको भी चूज करना चाहें,
वो कर सकते हैं। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर मैच हो रही है तो आप जरूर उसको कीजिए। अब इन्होंने नेक्स्ट अब्दुल सलीम साहब ने कहा है कि भाई मैं अपने पैशन के बारे में जो है नहीं सोच पा रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या पैशन है, मुझे पता नहीं चल पा रहा। तो इसके लिए जो है आप अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी कुछ लोग कराते हैं, आप उनसे मिलकर अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी करा सकते हैं। और वैसे बेहतर ये होगा कि आप खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपनी दिलचस्पी को देखें और उसके हिसाब से डिसाइड करें। क्योंकि जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कराया जाता है उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हों ऐसी मुझे उम्मीद नहीं लगती। तो ये आप खुद अपना डिसाइड करें कि किस फील्ड में आपको अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पूछा है किसी ने कि व्हाट आर जॉब फॉर बीए ग्रेजुएट इन सोशल साइंस। तो असल में गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर आप सोचेंगे तो पब्लिक सेक्टर में बहुत कम चांस होते हैं। जो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं सोशल साइंस में, या तो आप आगे उसको पढ़ाई कीजिए, मास्टर करिए सोशल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और मास्टर करने के बाद एकेडमिक में आप जा सकते हैं, पीएचडी वगैरह नेट का एग्जाम देके आप उसके बारे में सोच सकते हैं। या सिविल सर्विस भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है सोशल साइंस वालों के लिए बहुत कम स्कोप होता है। अच्छा, ये आपने पूछा है एमएसडब्ल्यू स्कोप के बारे में। तो सोशल वर्क के अंदर तो बहुत सारे स्कोप हैं। आजकल आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है उसे सोशल वर्क की ज़रूरत है। जैसे ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप देख रहे होंगे जगह जगह सोशल वर्कर्स की ज़रूरत हो रही है। तो इसके अंदर तो इसके है, हमेशा स्कोप है। लेकिन आपके अंदर पैशन उस लेवल का होना चाहिए। सिर्फ डिग्री करने से नहीं बनेगी कहानी। आप उस डिग्री को करने के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितना पैशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं, सोशल वर्क पर कैसे करियर, क्या क्या ऑप्शन हैं। अब नेक्स्ट सवाल किसी ने किया है कि मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ। और देखिए, लॉयर बनने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। 12th तक आपने कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई की ये कोई मायने नहीं रखता। 50+ अगर आपके नंबर जाते हैं 12th में, चाहे आप साइंस लें चाहे आर्ट लें, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पॉलिटिकल साइंस लेके आगे पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लॉयर बनने के लिए वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आगे भी उसकी आपको ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। अब यहाँ आलिया जी ने पूछा है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, मैं जानती हूँ। लेकिन अच्छा देखिए, इसके अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर क्या है कि वैसे तो ये पूरा चैप्टर है, अलग से इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा सिस्टम मैनेज करके पढ़ना शुरू करे और वो 1 2 साल 3 साल तक मेहनत करने की कोशिश कर सकता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वो इजीली जो है सिविल सर्विस को क्रैक कर सकता है। लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत खास वो होती है। 10 घंटे 12 घंटे भी अगर आपको पढ़ना पड़े टाइम मैनेजमेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको करना चाहिए। यहाँ आईएएस के लिए क्या पढ़ाई करनी होगी, ये इमरान साहब ने पूछा है। तो आईएएस के लिए आप ग्रेजुएट करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद में आप सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ डेंटिस्ट बनने के लिए क्वालिटी की बात की गई है। तो डेंटिस्ट बनने के लिए आपको एक नीट का एग्जाम होता है। वो नीट का एग्जाम आपको देने के बाद में एडमिशन मिलता है बीडीएस के लिए। अब यहाँ पूछा है पैशन पर डिपेंड करता है कि अगर हमें फ्यूचर में जॉब नहीं मिला। अगर आपके अंदर पैशन है तो यकीनन आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस दूसरों से बहुत बेहतर होगा उसका। जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। और परफॉर्मेंस खराब होगा, सिर्फ आप वैसे ही पैशन समझ लो, पैशन है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। और कोई क्वेश्चन तो स्किप नहीं हुआ? लग रहा है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। I think we have covered, yeah. Yeah. So I think we have covered all the questions.
Thank you very much, sir. It was indeed a very insightful session. आपने सारे questions बहुत अच्छी तरह से answer किया है. I'm sure it's going to be very helpful to the students in choosing the right career. Thank you very much, sir. You're welcome. So our next session will be on 22nd June, Tuesday at 4 p.m. The topic is career in mass media and journalism. So I would like to thank our speaker on behalf of the AMP team. It was really an honor to have you, and it was indeed a very insightful session. So I like to thank everyone who were present here. Thank you all. Have a great weekend. See you next time. That's it for now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.